Good morning class 10 students. As you know we are doing locus और locus में हमने 10.1 exercise करी है. Let's do one more exercise here, okay? And before that we will do some questions here. तो आपको 7th 8th questions जो first exercise है 10.1 का उसका देख लेते हैं एक बार. I'm reading out the questions. Question number 7 था. In diagram this PQR and SQR are on the same side of common base QR. Okay? तो आपके लिए ऐसे question है. Question number 7 of exercise 10.1. ठीक है. So he is saying that PQR and SPR इस तरह से दो ट्राइंगल हैं PQR and SQR. ठीक है. And prove that line SP, prove that this SP is the perpendicular bisector of QR. अगर आप लोकस से करना चाहते हो then it is very easy. कैसे करेंगे? C. और आप ये कॉन्ग्रुएंसी भी कर सकते हो, लोकस से भी कर सकते हो. लोकस से करेंगे तो वी नो दैट इफ व्हाट इज गिवन टू अस, इट इज गिवन टू अस दैट SQ इज इक्वल टू SR. नाउ SQ इज इक्वल टू SR मतलब क्या हुआ? S इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R. S इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? S must lie on perpendicular bisector of QR. S lies on perpendicular bisector of QR. Similarly, you can write similarly here. Okay. Similarly, PQ is equal to PR given. Therefore, P is equidistant. P is equidistant from Q and R. Therefore, P must lie on, P lies on perpendicular bisector of QR. If P and S both lie on perpendicular bisector of QR, therefore PS must be the perpendicular bisector because this is also making a line here. Therefore, PS is the required perpendicular bisector. PS is the required perpendicular bisector. We are talking about this perpendicular bisector पर S है, उसी perpendicular bisector पर P है और PS को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और वही PS होगी. इसलिए PS is the required perpendicular bisector he is talking about. So this is how you can do question number 7. इसको आप कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हो. ट्राई कर लेना, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो. इजी है. क्वेश्चन नंबर 8. Similarly, you have a simple, very simple diagram. Again, can be done in one line or you can extend it by using congruency. Question number 8 देखते हैं. ठीक है. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? बोलता है कि in the given figure PS is the angle bisector of angle P intersect QR, something like this. इस तरह से डायग्राम है आपके पास. ठीक है. यहाँ पर आपके पास P है, यहाँ Q है और यहाँ R है. ये जो PS है ये एंगल बाइसेक्टर बताया. किसका एंगल बाइसेक्टर है? एंगल P का. ओके. एंड इंटरसेक्ट QR एट S. देन SN इज परपेंडिकुलर टू PQ. SN यहाँ पे आएगा आपके पास परपेंडिकुलर टू PQ एंड फिर आएगा SM इज परपेंडिकुलर टू PR. SM इज परपेंडिकुलर टू PR. इस तरह से आएगा आपके पास. ठीक है. प्रूव दैट SN इज इक्वल टू SM. SN इज इक्वल टू SM. तो आप तो सीधा लिख सकते हो since S point S lies on perpendicular bisector of or angle bisector of PQR. Angle bisector of PQR. PQR जो एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है? एंगल बाइसेक्टर is PS. So every point on PS must be equidistant from PQ and PR. Every point on PS must be equidistant. Must be equidistant. So we can write like this: every point on PS is equidistant from the lines according to the definition of locus PQ and PR. ठीक है. And point S is also lying on PS. Therefore, S also lies on PS. Therefore, we can say that SN is equal to SM, which proves our theorem or question. Okay. इस तरह कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हो. आप चाहो तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो.
angle 1 is equal to angle 2, this is common, angle 3 and angle 4 90 degree. So by AAS the triangles are congruent, SN is equal to SM, done. Question number 9, find the locus of the point inside the angle ABC equidistant from two sides BA and BC. क्वेश्चन नंबर 9 में सीधी एक लाइन लिखो, लोकस इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, locus is angle bisector BD. So every point on BD will be equidistant from sides BA and BC. Okay, so you can write the locus is the angle bisector BD. Simple question हो गया ये भी. अच्छा, now we come to some of the very basic definition that you should all know, and then we'll prove certain basic results based on these basic definition. तो चार चीजें एक ट्राइंगल में आपको पता होनी चाहिए. तो मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर and altitude. Okay, so let's see what are these. In every triangle there are certain basic things, okay, basic elements. So triangle की ये तीन होती sides, A B C are the sides. What are median? A median is a line segment joining vertex to the midpoint of opposite side. तो एक मीडियन समझ लो पहले क्या होता है. मीडियन, मीडियन वो होता है पर वर्टेक्स से जाए और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे मीट करें. So we can write AM is the median if M is the midpoint of BC. Okay, sometimes it is written AD. Second median. So here if AD is the median, अगर AD median है तो BD is equal to CD हो जाएगा. BD is equal to CD हो जाएगा. और कोई हमें बात नहीं पता. 90 डिग्री के बारे में हम नहीं कह सकते, बट वी कैन से BD is equal to CD. इसी तरह से अगर BE is the median, E is the midpoint of AC, therefore आपको मिलेगा AE is equal to EC. Then BE is the median, and the most important property है जो हम improve करने वाले हैं, ये तीसरा मीडियन होगा. FB is equal to FA होना चाहिए, ये भी मीडियन होगा. एंड सी जरूर थोड़ी है तीन लाइन कॉन्करेंट का तब होती है, एक लाइन होता है कॉन्करेंसी ऑफ द लाइंस. तो वर्ड याद करो, कॉन्करेंट लाइंस. कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? those lines which pass through one point, three or more lines which pass through one point. क्योंकि दो लाइन तो हमेशा कॉन्करेंट हो जाएंगी, मतलब या तो वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है. इंटरसेक्टिंग है तो एक पॉइंट से पास करेंगी, पैरेलल तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा. इसलिए दो लाइंस के बारे में हम कॉन्करेंसी की बात नहीं करते. वी टॉक अबाउट थ्री लाइंस. सो थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट इफ दे ऑल पास थ्रू द सेम पॉइंट. तो यहाँ पे तो ये तीसरा मीडियन आया, इसकी कोई गारंटी अभी तक तो हमें पता नहीं है, ऐसा थ्योरम नहीं पढ़ा हमने, दैट ये जो थर्ड है ये भी यहीं से पास करेगा जहाँ से दो मीडियन पास करेगा. तो वी डोंट नो टिल नाउ. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टिल ड्राइंग द सेम डायग्राम. इसको हम प्रूव करेंगे अभी थ्योरम में, दैट ऑल द थ्री मीडियंस पास थ्रू द सेम पॉइंट एंड दिस पॉइंट वी विल कॉल एज सेंट्रॉइड. तो जहाँ से तीनों मीडियन पास कर जाएंगे ना, एक ही पॉइंट होगा, वो अलग अलग पॉइंट होगा. मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि दो लाइनें तो एक पॉइंट से पास कर गई, दो मीडियन फिर अलग पॉइंट से और दूसरे दो अलग पॉइंट से. You could have drawn a diagram like this कि ये मीडियन और ये मीडियन यहाँ से पास करा, ठीक है ना, और ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन यहाँ से पास कर दिया नीचे से थोड़ा सा. और ये जो बचे कौन से आपके पास, सपोज करो यहाँ ये देखो तीनों अलग अलग पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस वी विल प्रूव. ओके, दैट थ्री मीडियंस कैनॉट इंटरसेक्टिंग इन थ्री पॉइंट्स, दे विल इंटरसेक्टिंग इन ओनली one point, and that single point we'll call as centroid. So the median, the point where the three medians meet, we'll call that as centroid. And what is the median? Median क्या होता है? Median होता है, आप ये मान लीजिए वर्टेक्स से मिड पॉइंट, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर जो लाइन सेगमेंट मीट करती है, दैट लाइन सेगमेंट इन अ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ मीडियन. एक बात और सीख लो मीडियन के बारे में, मीडियन ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल. कभी भी ये ट्राइंगल के बाहर नहीं जाएगा. तो कुछ अभी आगे पढ़ेंगे हम, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर या फिर ऑल्टीट्यूड्स. ये इनमें से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऑल्टीट्यूड्स कैन गो आउटसाइड द ट्राइंगल, बट मीडियंस विल ऑलवेज रिमेन इनसाइड द ट्राइंगल. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट वन. वी हैव, अभी हमने बोला एंगल बाइसेक्टर्स. एंगल बाइसेक्टर्स का मतलब होता है, ठीक है, is suppose we have a triangle here A, B and C. Okay, so this is angle bisector BD, AD. Similarly, this is angle bisector B. Angle bisector means the line segment which bisects the given angle. बस
what given angle of the triangle. So 1 is equal to 2. If angle 1 is equal to angle 2, then AD is called the angle bisector. That is, it bisects the angles. इसी तरह से 3 is equal to 4 होगा और इसी तरह से 5 is equal to 6 होगा, राइट। अब आप देखो ये तीनों भी एक ही पॉइंट से पास करेंगे, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं और प्रूव करेंगे, राइट। So BE and CL. So we will also prove that the three angle bisectors are also concurrent. मैंने भी बताया था concurrent क्या होता है, when three or more lines pass through the same point, the lines are said to be concurrent. So we will also prove that three angle bisectors are also concurrent, and the point where they will meet, we will call this as in center. इस point को नाम देंगे हम in center, okay. The point will be given the name as in center, and we will prove that the three angle bisectors are also concurrent, ठीक है। अगला टर्म आता है आपका अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स और हाइट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अल्टीट्यूड्स और हाइट क्या होता है? अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड के बारे में समझ लो थोड़ा सा, ऐसा ट्रायंगल मानते हैं। A line segment which passes through the vertex and is perpendicular to the opposite side. A line segment which passes through the vertex and is perpendicular to the opposite side. तो इस तरह से होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा ये, ठीक है। ये वाले साइड यहाँ से जाएगी और यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा और ये यहाँ से जाएगी और ये भी 90 डिग्री बनाएगा। फिर से हम प्रूव करेंगे that three altitudes are concurrent and the point where they meet is called orthocenter. So we'll name this as H. H is orthocenter, ठीक है। So what is orthocenter? The point where the three altitudes of a triangle meet. These altitudes are sometimes also called as height. Height of a triangle, जहाँ पर तीन हाइट ट्राइंगल के मीट कर जाएंगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्थोसेंटर। अगेन ये भी प्रूव करेंगे कि तीनों ऑर्थोसेंटर कॉन्करेंट होते हैं, क्योंकि तो कोई जरूरी नहीं है दे कुड पास थ्रू थ्री डिफरेंट पॉइंट्स, बट वी विल प्रूव दैट दे विल पास थ्रू वन सिंगल पॉइंट। नेक्स्ट वन, इस तरह से ऑर्थोसेंटर हो गया। अब ऑर्थोसेंटर के बाद आपके पास आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। यहाँ पर अभी तक के जितने भी हमारे तीनों जो डेफिनेशन पढ़ी हमने, मीडियन, ऑल्टीट्यूड्स और एंगल बाइसेक्टर्स, उनका ये था कि दे वर पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल्स। जहाँ तीन वर्टिसेस होते हैं ना, ये तीनों वर्टिसेस होते हैं, ये वाला और ये, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो तीनों डेफिनेशन हमारे ये था कि वो वर्टेक्स से पास कर रहे थे तीनों, बट अब जो डेफिनेशन आ रहा है उसमें है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो ए से पास करे, मतलब दिस इज जस्ट बाइसेक्टिंग द साइड एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। दो चीजें एक साथ आ रही हैं, परंतु तीसरी चीज हट गई। अब ये यहाँ से पास नहीं करने की कोई गारंटी नहीं, कर भी सकता है, नहीं भी करे तो फिर वो मीडियन भी हो जाएगा और हाइट भी हो जाएगी। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से वर्टेक्स से पास कर जाए तो वो मीडियन हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट मान रहे हैं हम, और वो हाइट भी हो जाएगी क्योंकि इसको 90 डिग्री पे बना रहे हैं। अदरवाइज अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सिंपल डेफिनेशन है, मींस it is bisecting any sides and is perpendicular to the given side. So again you can have three perpendicular bisector like this, and of this side this way, okay. And the point where the three perpendicular bisectors meet करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर ओ। सर्कम सेंटर मतलब आगे हम देखेंगे कि अगर हम इसको सेंटर मानते हैं ना, तो ए बी सी से एक सर्कल पास करा सकते हैं। तो बेसिकली if you are studying circles you will understand that you can prove that OA is equal to OB is equal to OC, और ये हम कॉन्करेंसी से प्रूव कर सकते हैं कि OA is equal to OB is equal to OC। आप देख लो कैसे प्रूव करना है। सपोज करो ये इसको ज्वाइन किया मैंने, है ना, तो OB is equal to OC आ जाएगा। और A कैसे आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कॉमन, और ये दोनों साइड में बराबर। तो एस ऐसे दोनों बराबर हो गई, तो आपको क्या मिला, OB इज इक्वल टू OC। इसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल कॉमन प्रूव करो, OC इज इक्वल टू OA, तो आपने क्या प्रूव कर दिया, OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OA। इसका मतलब एक सर्कल पास करा सकते हैं। इसीलिए इस पॉइंट को जहाँ पर थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं ना, तो वी आर राइटिंग दिस एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। द पॉइंट वेयर द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट ऑफ द साइड्स perpendicular of sides meet, that point is called our circumcenter, okay. So we will study certain definitions, and the definitions are like this, that the three medians of a triangle are concurrent, three perpendicular bisectors of the triangle are concurrent,
3 altitudes are concurrent and 3 angle bisectors are concurrent. And the most important part is median and angle bisector can never go outside the triangle, but perpendicular bisector and altitudes can go outside the triangle. मतलब मीडियन जो होता है ना, तीनों मीडियन ट्रायंगल के अंदर ही रहेंगे और तीनों एंगल बाइसेक्टर भी ट्रायंगल के अंदर ही रहेंगे, लेकिन 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में से कोई एक बाहर जा सकता है। जैसे कि मान लो मैं इसका बनाऊं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं तो ये आउटसाइड द ट्रायंगल जा सकता है। इसी तरह से किसी ट्रायंगल की हाइट जो होती है ना, वो भी कई बार हम बाहर बना देते हैं ट्रायंगल के बाहर। तो ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, दीज टू कैन गो आउटसाइड द ट्रायंगल, राइट, सम पार्ट or at least one of them may be outside the triangle, and this usually happens in obtuse angle triangle. acute angle triangle में तो वो भी अंदर ही होते हैं ट्रायंगल के। तो ये चीजें हमने पढ़ ली। जो सेंटर होता है इनका, जो और तो 4 सेंटर्स होते हैं, सीख लो कौन कौन से सेंटर्स होते हैं इन अ ट्रायंगल। वी आर नेमिंग 4 सेंटर्स, ओके। जहां पर आपके मीडियंस मीट करते हैं, इस सेंटर को बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। जहां पर आपके ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं, ऑल्टीट्यूड, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। जहां पर आपके एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, इसको बोलते हैं इन सेंटर। और जहां पर आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड मीट करते हैं, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, ठीक है। तो इससे आप एक सर्कल बाहर की तरफ बना सकते हो, इससे आप सर्कल अंदर की तरफ बना सकते हो। ये दोनों सेंटर्स और ये बेसिकली ट्रायंगल को बैलेंस करने में काम में आ सकता है, सेंट्रॉइड, ठीक है। सो विल स्टडी देयर कॉन्करेंसी इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप you will complete till 10.1, right? So see you in the next class.